So we can handle the exception with the following keywords like try, catch, throw, throws and finally. तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसे. व्हाट इज ट्राई? देखो सबसे पहले ट्राई के बारे में. ट्राई इज अ ब्लॉक in which or block which consist the piece of code in which exception may occur. इस चीज को समझो. ट्राई क्या होता है? एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर क्या रखते हैं, वो एक कोड रखते हैं. बहुत सपोज बहुत सारा कोड है और आपको लग रहा है यार इस इतने कोड में से ये जो पर्टिकुलर कोड है या ये जो लाइन है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो लाइनें, एक मिनट को वेट कर रहा है सादगी एंड एरिस. So what is try? Try is basically a block in which the code in which exception may occur has to be put in the try block. यानी आपको सपोज आपके पास बहुत सारी लाइन्स है, ये सारी कोडिंग की लाइन है. And if you think that this particular line may arise problem or the exception may occur in this particular line, or even that also may happen कि all the code can generate exception. So whatever the code is, you have to put this particular code in the try block. How you can make the try block? For the making of try block, you have to write like that. Try this. This is the block. ये ब्लॉक है जिसमें you have to write your code in which exception may occur. क्लियर हो गया? यस सर. ट्राई वो ब्लॉक है जिसमें हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है. बट द क्वेश्चन इज दैट वेयर यू हैव टू राइट द ट्राई ब्लॉक. अब आपको ट्राई ब्लॉक कहाँ लिखना है? ठीक है, आपने समझा दिया कि ट्राई एक ब्लॉक है जिसमें एक्सेप्शन अकर आ सकती है. बट द मेन थिंग इज दैट वेयर यू हैव टू राइट द ट्राई ब्लॉक. तो ट्राई ब्लॉक should have right try block should have written inside the method or function. जो ट्राई ब्लॉक है इसे हम किसके अंदर लिखेंगे? फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर. क्लियर हो गया? यस सर. हाँ, कैसे? लाइक अब ये ट्राई है, अगर आपने कोई मेथड लिखा सपोज void area, तो the try block comes under this method. ऐसे. ये क्लियर हुआ? पहला तो समझो ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा हमने. ट्राई ब्लॉक कंसिस्ट अ कोड इन विच एक्सेप्शन में occur, and where we have to write a try block always should written inside the method. Clear? If you have any doubt till here, then you can ask. सर अगर हमारे पास बहुत सारा ज्यादा कोड हो वो अलग है बेटा, वो अलग बात है. वो बात करेंगे. देखो अभी तो ये बात हो रही है कि हम ट्राई लिखेंगे कैसे. ठीक है? तो अगर आपके पास बहुत सारा कोड है तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा कोड है जो यूजर से इनपुट ले रहा है. आई एम ऑलरेडी सेड कि दैट द पर्टिकुलर कोड व्हिच इंटरेक्ट विद द यूजर दैट मे जनरेट एक्सेप्शन. ठीक है? अ पीस ऑफ कोड अमंग द ऑल कोड can generate exception if that particular code is going to interact with the user. So if you think that these particular lines are going to interact with the user, then this particular line has been written inside the try block. Aris, is it clear? Yes, sir. Okay. So the second is catch.
कैच के बारे में देखो, व्हाट अबाउट कैच? कैच ऑलवेज बी रिटन, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम बहुत खराब हो रहा है. कैच ऑलवेज बी रिटन विद ट्राई ब्लॉक. Catch is just another body of try, you can say like that. Catch block or catch is another body of try. Catch will always be written with try. Single try cannot be written and single catch cannot be written. There is the combination of try at catch. If you want to write a try, then you have to write the catch. If you want to write a catch, then you have to write the try. Clear hai? Then what the catch is going to be done, what is actually the working of catch? Catch whatever, likho, if there is exception, if there is exception arise in try block, then only catch block will executes. Okay, if there is exception arise inside the try block, then only catch block will execute. देखो दो बातें होंगी. Suppose if you have written the code in the inside the try block, that there should be a two things, either exception may generate or exception may not be generated. Clear? So if exception will generate, then catch will have, है ना? The catch block will only execute when there is a exception. अगर आपने ट्राई के अंदर कोड लिख दिया और उस कोड के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तभी कैच होगा जो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट अब सेकंड थिंग ये है कि कैच में लिखोगे क्या. देखो, कैच consist normally the user यूजर छोड़ दो, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा. कंसिस्ट नॉर्मली द रीजंस, है ना, और द मैसेजेस दैट व्हाई एक्सेप्शन अकर्स. पहली चीज. दूसरी कैच क्या करती है? कैच रिसीव्ड द implicit exception. implicit, अभी सारा क्लियर हो जाएगा. ये implicit exception, ये दो चीजें समझ लो. पहला तो आपने समझ लिया कि कैच तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा. द सेकंड थिंग इज दैट कैच के अंदर क्या हम लिखेंगे? ओनली मैसेजेस. और वो मैसेजेस किससे रिलेटेड होंगे कि भाई एक्सेप्शन आई क्यों. कैच कंसिस्ट नॉर्मली द मैसेजेस that why exception has occurred. ठीक है, why exception has occurred. एक्सेप्शन क्यों आई है उसके सिर्फ मैसेजेस लिखे जाएंगे किसके अंदर? कैच के अंदर. दूसरी चीज, एक जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होगी ट्राई ब्लॉक के अंदर, वैसे ही एक इम्प्लिसिट मैसेज जनरेट होगा जावा रन टाइम के थ्रू, और वो मैसेज रिसीव कर लिया जाएगा कैच के थ्रू. कैच का मतलब ही होता है पकड़ना. कैच मींस पकड़ना. तो कैच रिसीव करेगा उस इम्प्लिसिट एक्सेप्शन को और अपना मैसेज जनरेट कर देगा. इस तरीके से आप समझ सकते हैं. ये तीन बातें समझ में आ गई मोटी मोटी? यस सर. यस सर. अभी से करके देख लेते हैं इन तीनों में कैसे काम होगा. तो इसके लिए एक नया नोटपैड निकाल लो, जिससे इधर हम जो मैं कोड करूं उसे समझाता भी चलूं. देखो, सबसे पहले क्लास बना लो, क्लास माय एक्स. अब यहां पे लिख लिया void कैलकुलेशन. अब मैं इनपुट ले रहा हूं यूजर से, तो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट java.util.
उसके बाद बफर की बात करेंगे, पहले मैं इसे समझा दूं आपको। सो यू हैव टू मेक object of a scanner class sc for taking the input, new scanner system dot in, मैसेज प्रिंट करवा। सारे लोग वीडियो मोड में हो ना? यस सर। और ये अभी आया विजय, विजय वीडियो ऑफ की हुई थी सर मैंने। बेटा सारे वीडियो उसमें वीडियो मोड में रहो। सर लाइट कट गई है। लाइट कट गई यस सर, तो क्या हो गया? लैपटॉप भी शट डाउन हो गया, इसीलिए फोन से कनेक्ट की हूँ। कोई बात नहीं, फोन से कनेक्ट रहो। यस सर। हाँ, स्कैनर ले लिया फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। नाउ प्रिंट अ मैसेज दैट system dot out dot println enter the value of a। कोई भी आपने मैसेज रिसीव किया, अब जैसे ही, because you have already activated this input mode of a system class, then your scanner will receive the value from at the runtime, and after receiving the value, the object of scanner class will hold the particular value that you have entered at the runtime. So you have to read the value from the scanner, and your requirement that this enter value should be in the integer format. What in Java, I'm already told you, whenever you provide the input in Java, it always will be in the string format, but your need that you require the value in the integer format, then you have to change the value from string to integer. For changing the value from string to integer, there is a method next int that I have already told you. अभी क्या करेगा, एससी से वैल्यू रीड करेगा एंड नाउ इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, दैट यू कैन रिसीव इनसाइड अ वेरिएबल दैट इज a. Again same thing, you need another value, then you have to print enter the value of b now. So similarly you can receive the value in b. Here you have to perform some calculation like a upon b. देखो, first of all I am going to make a program without using handling the exception, without handle the exception. Then you can easily understand कि what are the differences कि once we are going to handle the exception, or if we are not handle the exception, then what are the difference between them. There is a code it is without exception handling, and there should be the code with exception handling. So firstly I am going to write the code without handle the exception. So this is the code which I haven't used try or catch. देखो इस कोड में मैंने ट्राई कैच का यूज नहीं किया है, पहले मैं आपको कोड को दिखाऊंगा कि वो कोड जिसमें आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है वो कैसा चलेगा, उसके बाद में इसी कोड में एक्सेप्शन को हैंडल कर दूंगा। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। कॉल एक्स मेन बना लिया आपने, मेन सर वो क्लास। सिस्टम डॉट पैरेंथेसिस लगे। सर एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ये हो जाए फिर पूछना। ओके सर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग mca ना, मेन के अंदर यू हैव टू कॉल द कैलकुलेशन मेथड with the help of object of myX class. So create the object of myX class, that is new. Now constructor, now you can call m1 dot calculation. Just check the spelling of calculation. Calculation, okay, that's fine. Calculation, ठीक है. Now you have to save it. सेव कर दो सबमिट 2020 में, कॉल x डॉट जावा, सेव कर दिया आपने। अब ये नॉर्मल प्रोग्राम है, इसमें हमने कहीं भी कुछ भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। प्रोग्राम को cmd स्टार्ट करिए। सर एरर आएगा, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा है। अच्छा अभी ठीक कर दे रहे हैं, वेरी नाइस। कोड है आपका
कहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है? सिस्टम डॉट इन वो ऑब्जेक्ट जो बना है स्कैनर ओके एससी। ठीक है, इसे कंपाइल करिए। HCD summer 2020 Java C call x.java। कंपाइल हो गया, जावा कॉल x, प्रोग्राम को रन कराइए। देखो ये प्रोग्राम बिल्कुल हमारा ठीक है। अगर हम इसमें ठीक वैल्यू दे रहे हैं, सपोज 120 and 10, देयर शुड बी द प्रॉपर आंसर। प्रिंट नहीं कराया हमने, ओके। ए और बी को प्रिंट करवा दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन division is equals to C। Enter value, that is 120, 10 and division is equals to 12। क्या कोई exception आई? Hello? No, sir. Is there is any exception? No, No, sir. because user provide the correct values. But what will happen if user will provide the wrong value? See what will happen. Enter the value 120. Now I'm going to divide the 120 by 0, and that will Yes. cause a problem. That will generate exception like that. Okay. There is no answer. There is exception. Means your correct program is going to terminate when a user provide the wrong value. आपका सही प्रोग्राम जो था उसे वो गलत गड़बड़ हो गया, रन करते करते रुक गया, रन करते करते टर्मिनेट हो गया, अगर यूजर ने उसमें गलत वैल्यू प्रोवाइड की है इसकी वजह से। So this is basically a normal termination at runtime, and this is called the exception. Clear है? Yes, This sir. is the exception. When your program is got terminated at a runtime because of wrong input supplied by the user at runtime. This is clear? So now we have to handle this code. Yes, sir. Now we have to handle this code with the help of try and catch. So first we should have to write the try block. And as I already told you that try block consists the piece of code in which exception may occur. And try block have written inside the method like that. तो आपको क्या करना है? Suppose आपने कहा यार particular this is the problem where exception may generated। ये आपका पूरा कोड है। अब इसे बहुत अच्छे से समझना। ये आपका एंटायर कोड है। अब सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्राई को लिखे कहाँ पे? तो पहला तो ट्राई फंक्शन के अंदर आएगा। फंक्शन के अंदर क्या पूरे कोड के लिए हम ट्राई लिखें? बेसिकली ट्राई उस कोड के लिए लिखना चाहिए जहां प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम किस लाइन में है? इस लाइन वहाँ पे तो यू कैन राइट, हाँ यू कैन राइट ट्राई। इस कोड को आप ट्राई के अंदर ले लो। इस पूरे कोड को ट्राई के अंदर आपने ले लिया, करेक्ट? यहाँ पे लिख दिया कैच। कैच ऑलवेज कम्स अलोंग विद ट्राई। अब कैच का एक सिंटेक्स होता है। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कैच? कैच यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, जो कैच होगा, इट कैच कंसिस्ट द पैरामीटर, कंसिस्ट द पैरामीटर। ठीक है? क्या पैरामीटर करेगा? क्योंकि कैच को वैल्यू रिसीव करनी होगी। देखो यहाँ मैंने बताया ना आपको, कैच received the implicit exception. So whenever any function or any block may receive the values, any type of value, then definitely there should be a parameter. Okay. जब भी कोई ब्लॉक या कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिसीव कर रहे होते हैं तो रिसीव कैसे करेंगे? देयर शुड बी अ पैरामीटर। Yes, sir. संसूर क्लियर हो गया? Yes, sir. तो कैच के अंदर पैरामीटर क्या लिखोगे?
अभी इसमें आपको सोचना है, देखो व्हाट शुड बी द पैरामीटर इनसाइड द कैच। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं सिंटेक्स डाल दूं, इसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो होगा रेफरेंस ऑफ एक्सेप्शन, ऐसे समझ लो, रेफरेंस होगा ऑफ एक्सेप्शन क्लास। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसमें किस क्लास का रेफरेंस होगा। कैच में हम बेसिकली वी यूज टू पास द रेफरेंस ऑफ एक्सेप्शन क्लास एज अ पैरामीटर इनसाइड द कैच। ये लाइन समझ में आई? वी यूज टू पास द रेफरेंस ऑफ एक्सेप्शन क्लास एज अ पैरामीटर inside the catch. Aris, Yes, sir. is it clear? Yes. We have to pass the reference of exception class inside the catch as a parameter. But the question is that for which class you have to pass the reference. So see what will happen. Which type of calculation you have to perform here? You are performing here. Huh? Arithmetic exception, Yes. sir, I think. So there are lot of classes which you have to learn. How many classes are there for exception? As I've Yes, already told you in the previous lecture that there are some subclasses of exceptions like array, index, out of bound exception. There are subclasses, arithmetic exception, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना थोड़ा सा, number, format, exception, IO, exception, ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती हैं. There are several classes, ठीक है, of exceptions. So you have to know कि which classes for which class you have to pass the reference. तो यहाँ पे कौन सी क्लास यूज होगी? बिकॉज यू आर यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर. ऐसे भी समझ सकते हो कि ये ऑपरेटर आपने यूज किए हैं. ये ऑपरेटर कौन से? अर्थमेटिक. Yes, sir. तो देयर शुड बी द रेफरेंस ऑफ अर्थमेटिक क्लास. यहाँ पे आपने डाला कौन सी क्लास थी? Arithmetic. अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसका रेफरेंस AE पास कर दिया. ठीक. और यहाँ पे देखो दूसरा मैंने बताया आपको कि कैच जो होगा consist normally the message that why exception has occurred. Why exception has occurred. हाँ, तो इसके अंदर मैसेज होगा सिस्टम डॉट आउट सिंप्लीफाई करने के लिए एलन की भाई एक्सेप्शन क्यों आ रही है. तो आपने लिखा, आप लिखोगे हेलो प्लीज डोंट डिवाइड इट बाय 0. आपको पता है कि ये कोड तभी प्रॉब्लम करेगा जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, अदरवाइज ये कोड प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो आपने कोड को एग्जामिन किया और ये पता लगाया कि इस कोड में कब प्रॉब्लम आएगी. यू हैव एग्जामिन दिस कोड एंड you have to identify कि when this code is going to be problematic when the denominator is 0, otherwise this code will produce the result at any how. तो आपने कहा कि भाई इसमें अगर कोई यूजर 0 डाल रहा है तभी प्रॉब्लम आएगी. तो आपने लिख दिया हेलो प्लीज डोंट डिवाइड इट बाय 0. इसी कोड को अब मैं दोबारा से सेव कर ले रहा हूँ. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू compile this code because we have made some changes in this coding, so we have to recompile it. हैंग हो गया सिस्टम.
दोबारा से डॉस खोलता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। HCD summer 2020 Java C Money from one location. or X dot Java। कंपाइल हो गया कोड आपका? हेलो, Yes, sir. अब मैं जरा चेक कर लूं कि भाई है कौन कौन देख रहा है। विजय समझ आ रहा बेटा? है? Involves no Yes, sir, आ रहा है, sir. documentation that would allow. आप इसे रन करवाइए। जावा कॉल टेक्स्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ, देखो पहले तो नॉर्मल वैल्यू डाल देंगे, इसमें एक्सेप्शन आनी नहीं है, ये आंसर आ गया आपका। आप दोबारा जब प्रोग्राम करेंगे इसमें प्रॉब्लम डाल देंगे। नाउ 0, पहले आपने जो 0 डाला था उसमें आपको समझ में आ गया था, एक्सेप्शन आ गई थी। अभी आप Yes, जैसे sir. 0 डालोगे तो देखो क्या आएगा, हेलो प्लीज डोंट Please डिवाइड don't बाय। divide. Yes, sir. ये है हैंडल, आपने हैंडल कर लिया। Yes, पहले sir. बहुत सारी टिपिकल लाइंस आ रही थी, Yes, sir. ठीक है, अभी आपने क्या कर दिया, इस चीज को हैंडल कर लिया, तो बड़ी आसानी से उसने बता दिया कि व्हाट इज द एक्चुअली द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। Sir, डोंट one डिवाइड query. बाय। हाँ, अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रही है? Sir, ये command prompt आ रहा है sir. सर क्वेश्चन ये था, ये जो आपने void कैलकुलेशन ज्ञान किया है, यहाँ पे भी तो हम ट्राई लिख सकते हैं सर। हाँ, देखो ट्राई आप कहीं भी लिखो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि ट्राई का बेसिकली यूज होता है कि उस पर्टिकुलर कोड को हैंडल करना जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ट्राई कहाँ लिखें, कोई नहीं, इसे उठा के आप सीधे सीधे यहाँ डाल दो। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैच और एक मैं बताऊं, सुनो, कहाँ डिफाइन करूँ? कैच बिल्कुल जहाँ ट्राई बंद हो रहा है, जहाँ जैसे ही ट्राई बंद होगा वैसे ही आप कैच को लिखोगे। और एक चीज, अगर कभी भूल जाओ कि यहाँ पे कौन सी क्लास होगी, whenever you have confusion that which class I am going to use inside the catch for making the reference, don't worry, you can write only the exceptions also. Okay, suppose आपको नहीं आ रही कि which class should be there, it should be arithmetic exception, it should be array index out of bound or something else. Whenever you have confusion, then don't worry, write only exception here, it will automatically manage. Now save it and we are going to compile it again. सर यहाँ पे आपने ये मेन क्लास यूज नहीं किया, पब्लिक वॉइड मेन। ये है तो ओके नीचे है, ठीक है। यस सर। ये कंपाइल हो गया, इसे रन कर लो, दोनों में सेम ही रिजल्ट देगा आपको, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 please don't divide it by 0. क्लियर? यस सर। ठीक, तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं ट्राई कैच का कॉम्बिनेशन। आपने पढ़ा, अभी इसके साथ थोड़ा सा और ट्राई को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्राई को और हम कैसे यूज कर सकते हैं। यस सर।